اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 36ویں مجلس اسی سال ماہ ذوالقعدہ کی 10ویں تاریخ منگل کو دستبوسی کی سعادت میسر آئی۔ خواجہ شاہی محتاب رحمت اللہ علیہ کا ذکر آیا جو بدایوں میں تھے۔ فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے انہیں شاہی روشن ضمیر کہا تھا۔ جس وقت انہیں خرقہ دیا گیا کسی کو شیخ محمود معینہ دوست کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ہم نے آج یہ کام کیا ہے کہ شاہی کو خرقہ عطا کیا ہے، کیا آپ کو یہ بات پسند آئی؟ شیخ محمود معینہ دوست نے فرمایا کہ آپ جو کرتے ہیں سب پسندیدہ ہی ہوتا ہے اور ٹھیک بات بھی وہی ہوتی ہے۔ یہاں سے ان کے بھائی خواجہ ابو بکر محتاب رحمت اللہ علیہ کا ذکر نکلا۔ مولانا سراج الدین حافظ بدیونی نے جو مرید خاص ہیں بیان کیا کہ وہ رات کو اٹھے ہوئے تھے، وضو تازہ کیا، 2 رکعتیں پڑھ کر رحمت حق سے جا ملے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جس طرح زندگی گزارتے ہو اسی طرح موت بھی آئے گی۔ یہاں سے شیخ احمد نہروالی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ وہ بزرگ آدمی تھے۔ شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کسی کو کم ہی پسند فرماتے تھے۔ انہوں نے شیخ احمد نہروالی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی احمد نہروالی کی مشغولی کو تولے تو وہ 10 صوفیوں کے برابر ہوگی، اور یہ احمد نہروالی جب جامع مسجد جاتے تو ان کے مرید ساتھ ہوتے اور وہ اس ہجوم کے ساتھ جاتے۔ ایک اور درویش تھے جو شیخ علی شریدہ کہلاتے تھے۔ وہ ہر دفعہ اس شیخ احمد نہروالی کو منع کرتے کہ تم اس ہجوم کے ساتھ مسجد میں نہ جایا کرو۔ یہاں تک کہ ایک روز شیخ احمد نہروالی اسی طرح مریدوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے۔ راستے میں کوئی شخص کسی کو لاٹھی مار رہا تھا۔ شیخ احمد نے مریدوں کے ساتھ اس کے چاروں طرف گھیرا ڈال دیا اور اس مظلوم کو اس لٹ باز سے چھڑا لیا۔ اسی دوران شیخ علی شریدہ بھی پہنچ گئے۔ شیخ احمد نہروالی نے جب ان کو دیکھا تو بولے کہ اسی طرح کے کاموں کے واسطے میں مریدوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ پھر یہ حکایت نکلی کہ شیخ احمد نہروالی کس کے مرید تھے۔ فرمایا کہ واللہ عالم، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کس کے مرید تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو نعمت فقیہ مادو سے ملی تھی، اور یہ فقیہ مادو اجمیر کی جامع مسجد کے امام تھے۔ ایک روز شیخ احمد نہروالی ہندوی یعنی قدیم اردو یا ہندی کلام گا رہے تھے، اور جوانی کے زمانے میں ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ ہندوی کلام اچھا گاتے تھے۔ جب فقیہ مادو نے سنا تو کہا کہ جیسی آواز تمہاری ہے، افسوس کہ اسے ہندوی گانے میں خرچ کرتے ہو۔ فقیہ مادو نے کہا کہ قرآن حفظ کر لو۔ شیخ احمد نے قرآن یاد کر لیا۔ لائق آدمی تھے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ بھی فرمایا کہ جس سما یعنی قوالی میں شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سر العزیز کا واقعہ ہوا ہے، اس مجلس میں شیخ احمد نہروالی بھی موجود تھے، اور شیخ قطب الدین کے واقعے کی حکایت پچھلے صفحات میں آ چکی ہے۔ پھر بدایوں کے درویشوں کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ بدایوں میں ایک درویش تھے جن کو عزیز بشیر کہتے تھے۔ وہ بدایوں سے دہلی قاضی حمید الدین ناگوری کے ساتھ ساتھ مولانا ناصر الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خرقہ لینے آئے ہوئے تھے۔ اسی نیت سے سلطان کے حوض یعنی تالاب، غالباً شمسی تالاب مراد ہے، کہ کنارے ایک اجتماع کیا۔ درویشوں میں سے بعض لوگ وہاں تشریف لائے۔ اس درمیان ہر شخص حوض سلطان کے میٹھے پانی کی تعریف کر رہا تھا۔ ان عزیز بشیر نے جو خرقہ حاصل کرنے آئے تھے جب حوض سلطان کو دیکھا تو کہا کہ یہ چھوٹا حوض ہے، جو حوض ساغر یعنی ساغر تال جو بدایوں میں ہے اس حوض سے زیادہ اچھا ہے۔ محمد کبیر وہاں حاضر تھے۔ جب انہوں نے ان کی یہ بات سنی تو مولانا ناصر الدین سے کہا کہ ان کو خرقہ مت دیجیے، یہ مبالغہ کرنے والے آدمی ہیں۔ مولانا ناصر الدین نے ایسا ہی کیا، ان کو خرقہ نہیں دیا۔ اس درمیان پھر خواجہ شاہی محتاب کی حکایت آئی۔ فرمایا کہ بدایوں میں ان کی بڑی رونق ہو گئی تھی، اور سب لوگ ان کے پاس عقیدت سے آتے تھے، اور وہ جہاں بھی جاتے بھیڑ لگ جاتی۔
और ये ख्वाजा शाही मोइताब सियाफाम आदमी थे। उसी जमाने में बदायूं में एक दरवेश मसूद नखासी नामी थे। जब ख्वाजा शाही को इस हंगामे के साथ देखा तो बोले कि मियाँ कलवे, हम्माम तो खूब गर्म किया है, जल भी जाओगे। ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि ऐसा ही हुआ जैसा कि उन्होंने कहा था। ख्वाजा शाही जवानी ही में रिहलत फरमा गए रहमतुल्लाह अलैहि। यहां से बदायूं के कोतवाल ख्वाजा अजीज का जिक्र निकला। फरमाया कि खूब आदमी था, दरवेशों का न्यासमंद, शेख ज़ियाउद्दीन का मुरीद था जो बदायूं में थे। कभी कभी दरवेशों में से कुछ लोगों यानी कुछ को बुलवाता, बारगाह यानी कचहरी में भिजवाता, जगड़ता और मुंह दर मुंह सुना था। उसने बदायूं ही में जवानी में शहादत पाई। उसके बारे में फरमाया कि एक रोज मैं बदायूं की अमरियों यानी आमों के बागों की तरफ, जिसे लक्की आलू कहते हैं, गया हुआ था। ये अजीज कोतवाल एक दरख्त के नीचे बैठा था और दस्तरख्वान बिछा रखा था। जब मुझे दूर से देखा तो पुकारा और कहा, मरहबा, आइए। मैं डरने लगा कि कहीं तकलीफ ना पहुंचाए। जब मैं उसके पास गया तो मुझे पूरी ताजीम के साथ अपने पहलू में बिठाया। खाना खाकर मैं वापिस आ गया। मौलाना सिराजुद्दीन हाफिज बदौनी हाजिर थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये हदीस है, जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर इब्लीस यानी शैतान होता है। ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि मुशाइख का कौल है। मौलाना सिराजुद्दीन ने फिर पूछा कि क्या ये भी हदीस रसूल है, जो किसी फलाह पहुंचाने वाले को नहीं देखता वो कभी फलाह को नहीं पहुंचता। फरमाया कि ये भी मुशाइख का कौल है। उस वक्त एक दरवेश का जिक्र फरमाया कि अगर वो किसी आदमी को देखता जो किसी का मुरीद ना होता तो कहता, ये किसी के पल्ले में नहीं बैठा। बंदे ने अर्ज किया कि गोया वो वजन नहीं रखता। फरमाया कि नहीं, इसके ये मानी है कि हर वो शख्स जो किसी पीर का मुरीद होता है तो जो कुछ वो मुरीद करता है कल कयामत के दिन वो अमल उसके पीर के पल्ले में डाला जाएगा। बस जो किसी का मुरीद ना हो तो कहते हैं कि फला किसी के पल्ले यानी पलड़े में नहीं बैठा है, यानी उसका कोई पीर नहीं है। फिर इस बात का जिक्र आया कि करामत का इजहार नहीं करना चाहिए। इरशाद हुआ कि करामत पैदा कर लेना कोई काम नहीं है, सीधा सच्चा मुसलमान मिस्कीन फकीर होना चाहिए। फिर हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा ख्वाजा अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह दरिया दजला के किनारे पहुंचे। एक मछेरे को देखा और उससे बोले कि पानी में जाल डालकर मछली पकड़। अगर मैं साहिब विलायत हो गया हूं तो इस जाल में एक मछली फंसेगी जो पूरे 2.5 मन की होगी, ना कुछ कम ना ज्यादा। माहीगीर ने जाल पानी में डाला और एक मछली जाल में फंस गई। जब उसका वजन किया गया तो पूरे 2.5 मन की थी, ना कुछ कम ना ज्यादा। ये खबर शेख जुनैद क़द्दसल्लाह सिर्रल अजीज को सुनाई गई तो फरमाया कि काश के उस जाल में एक काला सांप आता और अबुल हसन को डस लेता और हलाक कर देता। कहा गया कि ऐसा क्यों फरमाते हैं। इरशाद हुआ कि अगर सांप उनको डसता और वो हलाक हो जाते तो शहीद होते। चूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए क्या खबर कि उनके काम का अंजाम कैसा होगा। यहां से एक दरवेश की हिकायत बयान फरमाई कि अगर किसी के पेट में दर्द होता तो कहता कि इसको शिकंबा यानी ओजड़ी खाने के लिए दो, अच्छा हो जाएगा। और अगर किसी के सर में दर्द होता तो कहता इसको बुनी हुई सिरी खिलाओ, अच्छा हो जाएगा। जैसा वो कहता वैसा ही होता। शेख अली शुरेदा ने उससे कहा, ऐसी बातें ना किया करो, तुम्हें नुकसान पहुंच जाएगा। नतीजा यही निकला कि उनको एक बला में मुब्तिला किया गया। शेख अली शुरेदा उनके पास आए और बोले, मैं ना कहता था कि ऐसी बातें ना करो, तुम्हें नुकसान पहुंच जाएगा। मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए इस बला में मुब्तिला हुए। वो दरवेश बोला, मैंने बुरा किया, अब दुआ करो ताकि मैं अच्छा हो जाऊं। शेख अली शुरेदा ने कोई दुआ न की, वो उसी बीमारी में इंतकाल कर गया। सैंतीसवीं मजलिस। उसी साल माह जुल्हज्जा की 11वीं तारीख जुमेरात को दस्तबोसी की सादत तक रिसाई हुई। चूंकि अय्याम तशरीक थे, लोग मतवातर आ जा रहे थे। खाना बार बार लाया जाता।
उस वक्त खुशतबी के तौर पर फरमाया कि एक दरवेश से पूछा गया कि तुम्हें कलामुल्लाह की कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है। बोले, जन्नत के दरख्तों में हमेशा फल रहते हैं। उस वक्त ये नुक्ता बयान फरमाया। इसके बाद इन 4 कलमों की तशरीह फरमाई कि अकुल खाना मस्तर है, उकल जो कुछ खाते हैं, उकला एक बार एक ही दफा में खाना, और उकला एक नवाला। इस दरमियान एक अजीज यानी पीर भाई आए और छोटे से बच्चे को तख्ती के साथ पेश किया और फिर अर्ज की कि ये मेरा छोटा बच्चा है, इसकी तख्ती पर अपने कल्ब मुबारक से लिख दीजिए ताकि इसकी बरकत से खुदा ताला इसे कुरान पढ़वा दे। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने उसकी तख्ती पर अपने दस्ते मुबारक से लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ बे ते से जीम हे खे। उस वक्त फरमाया कि जब किसी का काम होने के लिए कुछ लिखें और कलम जल्दी जल्दी चले और कलम की रवानी में फर्क ना आए तो वो काम जल्दी पूरा हो जाता है, और अगर कलम मुश्किल से चले और रुकावट पड़े तो इस काम में भी देर लगती है और रुकावट पड़ती है। फिर फरमाया कि ये अक्ल की बातें हैं, इस किस्म की बातों का जो फरासत से ताल्लुक रखती हैं बयान कर देना जायज है। फिर एक दरवेश की हिकायत आई। फरमाया कि एक दरवेश थे जो गुजरात गए हुए थे। उन्होंने हिकायत बयान की कि मुझे गुजरात में एक पहुंचा हुआ साहिब कश्फ दीवाना यानी मजजूब मिला। मैं और वो दीवाना दोनों एक ही घर में थे और एक कमरे में सोते थे। एक दफा मैं एक ऐसे हौज यानी तालाब की तरफ गया जिसकी निगरानी की जाती थी और किसी को इजाजत न थी कि इस हौज यानी तालाब में पैर डाले। मेरी उस हौज यानी तालाब के चौकीदार से जान पहचान थी। उसने मुझको इजाजत दे दी कि इस हौज में वुजू कर लो। बाज औरतें जो पानी भरने आई थीं उनको इजाजत नहीं दी कि पैर हौज में रखें। एक बुढ़िया उन दरवेश के पास आई और बोली कि ये मेरा घड़ा पानी से भर कर दे दो। ये दरवेश कहते हैं कि मैंने बुढ़िया का मटका भरकर दे दिया। एक और औरत आई और घड़ा मुझको देकर बोली कि इसे भी भर कर दे दो। मैंने वो भी भर दिया। इसी तरह 4-5 के मटके पानी से भर कर दिए। अलगर जब वहां से वापस आया और कमरे में पहुंचा तो वो दीवाना कमरे में सो रहा था। मैं अंदर आया। नमाज का वक्त हो गया था। मैंने चाहा कि नमाज पढ़ लूं। बुलंद आवाज से तकबीर कही। दीवाना बेदार हो गया। मुझसे बोला कि ये क्या जोर शोर दिखा रहे हो, काम तो बस वो था कि तुमने उन औरतों के घड़े पानी से भर कर दिए थे। अड़तीसवीं मजलिस सन 717 हिजरी माह मुबारक शबान की 12वीं तारीख 8 महीने बाद कदमबोसी की दौलत मुयस्सर आई और ये गैर हाजिरी इस सबब से थी कि लश्कर के साथ देवगीर यानी दौलताबाद दक्कन गया हुआ था। जब मज़कूरा जुमेरात को कदमबोसी की सादत मुयस्सर आई तो बड़ी नवाजिश और मेहरबानी फरमाई और रास्ते की सख्ती और तकलीफों के बारे में दरियाफ्त करते रहे और बहुत ही बंदा नवाजी फरमाई। मलीह जो मेरा आजाद करदा गुलाम और रफीक है किसी कदर बीमार था, उस बीमारी की हालत ही में हाजिर हुआ और राकिम के साथ ही खिदमत में पहुंचा। उसके मर्ज का हाल दरियाफ्त किया। बंदे ने अर्ज की कि बंदे को रास्ते में उनकी बीमारी की वजह से ठहरना पड़ा था। फरमाया, तुमने अच्छा किया। अगर कोई अपने दोस्त के साथ जाए और दोस्त को जहमत और तकलीफ पहुंचे तो उस पर वाजिब है कि दोस्ती का हक निभाए और उसके हाल का ख्याल रखे। हिकायत की मुनासिबत से फरमाया कि इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह हमेशा सफर में रहे और किसी शहर में 40 रोज मुकीम ना होते थे। जहां भी जाते 40 रोज से कम कयाम करते और किसी और जगह चले जाते। उनकी उम्र इसी तरह गुजरती थी कि एक दफा किसी जवान ने उनके साथ रहने की इजाजत चाही। इब्राहिम खवास ने कहा कि तुम मेरी मुसाहिबत नहीं कर सकते। मैं तो कभी इस शहर में रहता हूं, कभी उस शहर में, कभी बेसामान, कभी बासामान। तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। वो जवान फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि मैं जरूर आपके साथ रहूंगा। जब उसने बहुत इसरार किया तो इब्राहिम ने भी इजाजत दे दी। किस्सा मुख्तसर, इब्राहिम खवास अपनी इस आदत के मुताबिक शहर ब शहर फिरने लगे और जहां भी ठहरते 40 रोज से कम ठहरते। हत्ता के एक जगह पहुंचे तो वो जवान बीमार हो गया।
ख्वाजा इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह उसकी बीमारी की वजह से 3 महीने उस जगह मुकीम रहे। उसके बाद एक रोज उस जवान का जी नान और मछली खाने को चाहा और इब्राहिम से उसकी फरमाइश की। इब्राहिम के पास एक गधा था जिस पर कभी कभी सवारी किया करते थे। उसके अलावा और कुछ असबाब उनके पास न था। उसको बेच डाला और उस जवान की आरज़ू पूरी की। जब कुछ वक्त गुजर गया तो उस जवान को किसी कदर सेहत हुई। ख्वाजा इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह ने सफर का इरादा किया। जवान ने उनसे कहा कि अपना वो गधा मुझे दे दीजिए ताकि उस पर सवार होकर आपके साथ चलूं। इब्राहिम को सूरत हाल कहनी पड़ी। सारा किस्सा उसे सुनाया कि उस गधे को फरोख्त करके तेरे लिए नान और मछली फराहम की। गर्ज के वहां से किसी तरफ रवाना हुए। ख्वाजा इब्राहिम 3 रोज उस जवान को अपनी गर्दन पर चढ़ाए फिरे। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर का मकसद उस हिकायत से ये था कि साथियों के साथ अच्छा बर्ताव रहना चाहिए। जब ये हिकायत पूरी हो चुकी तो अपनी बीमारी का हाल बयान फरमाया। बंदे ने बीमारी की ये खबर लश्कर ही में सुन ली थी। कहते थे कि किसी ने जादू कर दिया था। उसके बारे में अर्जदाश्त की कि क्या हुआ था। इरशाद हुआ कि हाँ 2 महीने तक बीमार रहा, सख्त तकलीफ उठाई, यहां तक कि एक शख्स को लाया गया जो जादू की इलामतों को ढूंढ निकालने में कमाल रखता था। किस्सा मुख्तसर वो शख्स आया और घर के दरवाजे के सामने और इतराफ फिरा और हर दफा थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसको सूंघा और उसी दरमियान एक जगह की मिट्टी को सूंघ कर बोला कि यहां से खोदो। जब खोदा गया तो जादू की चीजें निकल आईं। उस वक्त मर्ज में थोड़ी सी कमी हो गई। उस अरसे में उस शख्स ने कहा कि मैं इस कदर महारत भी रखता हूं कि अगर कहा जाए कि किसने जादू किया है तो मैं उसका नाम बता दूं। ये इत्तिला मुझ तक पहुंचाई गई तो मैंने कहा हरगिज़ नहीं, उसको मना कर दो कि नाम न बताए। जिस किसी ने भी जादू किया था मैंने उसे मुआफ कर दिया। इस दरमियान बंदे ने अर्ज की कि शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रल अजीज पर भी जादू किया गया था। फरमाया कि हाँ, वो जादू भी जाहिर हो गया था और जिन लोगों ने ये हरकत की थी उनका पता भी चल गया था और उनको अजूदन के हाकिम और वहां के बाइख्तियार लोगों ने शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रल अजीज की खिदमत में भेज दिया था और अर्ज की थी कि आप क्या फरमाते हैं, इन लोगों के साथ क्या किया जाए। इरशाद हुआ था कि मैंने इन्हें मुआफ कर दिया, इन्हें छोड़ दो। इस बात की मुनासिबत से हिकायत बयान फरमाई कि रसूल अलैहिस्सलाम पर भी जादू किया गया था। जब मौज़तीन यानी सूरह फल्क और सूरह नास नाजिल हुई तो गंडे करने वालियों का शर दूर हुआ। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की कि अगर हुक्म हो तो जिन औरतों ने जादू किया है उनकी गर्दन उड़ा दो। रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूंकि खुदाए अज़्ज़ व जल ने मुझे सेहत अता फरमा दी है मैंने इन्हें माफ किया। यहां से उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकायत बयान फरमाई कि जुमे के रोज मिंबर पर तशरीफ लाए हुए थे। खुतबे के दौरान फरमाया, समझ लो कि मेरी मौत करीब आ गई है और ये बात मैं करामत से नहीं कहता, इस वजह से कहता हूं कि मैंने ख्वाब देखा है कि एक परिंदा आया है और उसने 2 दफा मेरे चोंच मारी है और ख्वाब में परिंदा का मतलब मलकुल मौत होता है। इस वजह से कहता हूं कि मेरी मौत नजदीक आ गई है। दूसरे हफ्ते शहादत पाई। मुगैरा के गुलाम इब्न लोलू नामी ने मेहराब के अंदर उनको तलवार मारी। जब अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये जख्म खाकर गिर पड़े तो उस गुलाम ने बाहर आकर 9 आदमियों को और कत्ल किया और इसके बाद खुदकुशी कर ली। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में कुछ सांस बाकी थे। ये खबर जब उनको पहुंचाई गई कि उस गुलाम ने चंद आदमियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली तो अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने खुद को अपने आप मार लिया और उसको मेरे लिए कत्ल नहीं किया गया। यहां से अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकायत बयान फरमाई कि उनको अब्दुल रहमान मलजम ने कत्ल किया था। हुआ यह कि वो मुसल्ला होकर अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे लगा रहा और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई हथियार नहीं था। अली एक जगह पानी के किनारे पहुंचे और पार जाने के लिए पायाब जगह ढूंढने लगे। जहां पानी के किनारे खड़े थे वहां एक कब्रिस्तान था। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कब्रिस्तान की तरफ रुख किया और किसी शख्स का नाम लेकर पुकारा कि ए फलां। कब्रों में से इस नाम के 70 आदमियों ने इसका जवाब दिया
پھر امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح آواز دی کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں۔ اس نام کے 7 آدمیوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی نے اس طرح آواز دی، اے فلاں کے بیٹے فلاں اور فلاں کے بیٹے فلاں۔ اس پر ایک شخص نے جواب دیا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ پانی کس جگہ کم ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اسی جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں۔ پس امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ پانی میں اتر کر پار ہو گئے۔ عبد الرحمن ملجم نے یہ ساری گفتگو سنی اور اسی طرح پیچھا کرتا رہا۔ پار اترنے کے بعد بولا کہ اے علی، ان مردوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام تو جانتے ہو، یہ نہیں جانتے کہ پیاب کہاں ہے؟ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا تو ہوں، لیکن نہیں چاہتا کہ تم میرے حال سے مطلع ہو۔ القصہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور عبد الرحمن نے آ کر تلوار چلائی۔ امیر المومنین علی نے جب زخم کھایا تو فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ یہی تھے۔ بندے نے پوچھا کہ یہ عبد الرحمن مسلمان تھا؟ فرمایا کہ ہاں مسلمان تھا اور معاویہ کی طرف ہو گیا تھا۔ بندے نے عرض کی کہ معاویہ کے بارے میں کیسا اعتقاد رکھنا چاہیے؟ فرمایا کہ وہ مسلمان تھے اور صحابہ میں سے تھے اور رسول علیہ السلام کے سالے تھے۔ ان کی ایک بہن تھی، ان کا نام ام حبیبہ تھا، وہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اس شکایت کے بعد چونکہ بندہ 8 مہینے کی مدت کے بعد خدمت میں حاضر ہوا تھا اور لشکر سے دوسرے عزیز یعنی پیر بھائی بھی آئے ہوئے تھے، اشتیاق اور جدائی کا خوب ذکر رہا۔ ارشاد ہوا کہ میں نے ایک دفعہ ایک عرض داشت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں لکھی تھی اور یہ ربائی قلم بند کی تھی۔ ربائی: جس دن سے کہ مجھے آپ کا غلام کہا جاتا ہے، لوگ مجھے آنکھوں کی پتلیوں پر بٹھاتے ہیں۔ آپ کے لطف عام نے ایک عنایت فرمائی ہے، ورنہ میں کون اور لوگ مجھے کیا جانے۔ اس کے بعد جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس ربائی کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے اسے یاد کر لیا ہے۔ والسلام۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔